Hi friends, good evening. We are meeting after a long time today, after more than a couple of months. You know the reason probably. I got COVID and then it took a long time to go away and the after effects and all. So yes, it took its toll. I'm perfect now. All your good wishes and everything worked. So I'm perfect now. But yes, I had generated a lot of backlog. So I had to give it some extra time and also I could not appear here. So that's the reason. But it's good now. We'll start doing it again. In fact, Ratnabha and Ravi also got it, so yes, it was a bit of a turmoil here in Merit Shine. So yeah, that was the thing. Everything is fine now, so you can expect to see us more often now. Many of you wanted me to share my COVID experience and what I learned from it. Yes, so yes, it gave me a slightly new perspective. So I'll share that with you in a different session. But today it's about something else. A couple of days back, somebody had posted in our Facebook group about this particular question: when exactly do I quit, or when exactly should I quit? How does one decide it's time to quit? And the question was very pertinent. I'll first tell you what happened with that poor guy. Everybody just pounced upon him with all their motivational stuff and theories, saying, how can you think about this? What he was saying was, just listen out, it's very interesting. He was saying that just people keep telling us, the teachers keep telling us all the time that anybody who works hard eventually gets success. But let's look at it logically. I mean, that was his argument. That's not what I'm saying. He says that let's assume that there are 1 lakh serious aspirants every year in the exams. I'll agree with that number. It can be 78,000, definitely not more than 1 lakhs. And let's say approximately there are 10,000 seats in banking exams. Now, do not start in the comment box about itne seats hain, itne vacancies hain. I'm just giving an example, right? So the question is, if it's just 10,000 vacancies and 1 lakh serious aspirants, how can everybody make it? That's impossible. So 90% would fail even from the serious candidates. So that was the logic. He says that everybody is lying that way and it cannot work like this. Ye sab jhoota motivation hai. Now there is an obvious flaw in the theory. I will talk at length about it, but yes, there is an obvious flaw in this theory, that 1 lakh people, that if we assume for a moment it's 1 lakh serious aspirants every year for bank exams for say 10-12,000 seats. Fine, let's take rough numbers like that. So these 1 lakh students, 90,000 say do not make it. So these 90,000 get shifted to the next year. It doesn't mean that 1 lakh this year and 1 lakh next year would be a different set. They will not be mutually exclusive sets. वो अलग बच्चे थोड़े ना होंगे. इन्हीं में से बहुत सारे लोग अगले साल के लिए चले जाएंगे ना. And that's how the cycle runs. So eventually what will happen? If it's 1 lakh this year, 10,000 make it. Next year also 8,000, 9,000 will make it from this slot. Then again it keeps continuing. So eventually out of this 1 lakh lot of serious aspirants of this year, again hypothetical numbers, I do not have any proof of this, that's what we assume generally, इतने serious लोग होते हैं. तो इसमें से 30-40 हज़ार, 30, 40, 50,000 people would eventually make it in the next 3, 4, 5 years, and that's how cycle runs. Somebody would make it in the first go, somebody in the second go, somebody in the third go, depending upon one's aptitude, preparation levels, the time you can devote, the resources that you've got, and multiple other factors, right? So that tells you why not all, but a majority or a large percentage of serious candidates do make it. Fine. So this is that first answer. But what happened there was people just pounced upon him. To chhod de preparation and you just leave it and you're so demotivated and you're filling us with negativity and all. Fine. I can understand the sentiment. I'm all for positivity. I have always been talking about optimism and how having a positive thought process does help you in clearing the process itself, isn't it? I've always been talking about that. But let's go to that poor guy's question once more. So if somebody is there who says that, sir, everything is fine, but I'm still not making it. It's been 5 years and I've tried my best probably, and I still cannot make it. What do I do? Whom should I consult on whether it's time to quit? मैं इसको छोड़ दूँ, fine, या नहीं छोड़ूँ? कैसे मुझे पता चलेगा? So first thing is, I mean, don't blame me saying some motivation के लिए आए थे, आप तो demotivate कर रहे हो इसमें. नहीं, I'm just asking you to think about it practically as well. Motivation तो अलग है ही है, but let's think about it practically as well. If you actually are in a position, or eventually, God forbid, you are in a position like that a few years down the line, कि आपको लगता है कि I don't know, probably the time is running out, हो सकता है time ज़्यादा हो रहा है, and I do not have that kind of time with me, I probably need to try something else, शायद मेरे को छोड़ देना चाहिए. ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारे लोग के साथ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है. So how do you decide? It's very practical, it's very commonsensical if you think about it. मैं 3-4 pointers आपको दूंगा. I'll just give you 3-4 pointers on which only you can decide whether it's time for you to
quit and do something else, or whether you need to continue with it. Fine. So just listen to it logically. You can always customize it according to your requirements. I'll give you a broad framework on which you can decide whether it's time for you to quit this and do something else. Number one, it'll be just 3-4 points. Number one, the resources you had for your preparation and the use you made of them. What does that mean? It can be books, it can be test series, it can be your practice material, it can be your teachers. Fine. All these are resources for your preparation and the use that you made of them. Fine. So you'll find people with all the PDFs in the world. Fine. Everything, absolutely everything, all the lectures, everything, access to all the teachers, and that makes them believe they'll make it. Is that enough? No. Unless you listen to the teachers, you make good use of the books, the test series and everything, and you do your best, you'll not be successful most of the times. So number one would be the resources available to you. Are they good enough? Are they best? Fine. If not best, are they at least decent enough to make sure that you are through? And did you utilize them optimally? Fine. Did you make good use of them? This is point number one. Think about it yourself. Nobody can guide you on this. आपके पास सारे resources थे और आपने उनका ठीक से यूज़ किया कि नहीं करा. This would be the first point. Number two would be, how well did you perform in the last exams you took? Fine. Probably the last year's exams, 2020 exams. So there can be somebody who missed the prelims by a good margin. Prelims में बाहर हो गए, 25 नंबर कम थे. There can be somebody else on the other side of the continuum who at the stage of the interview was out probably in the final merit by just 0.25, 0.1, fine, 1 mark, like that. So I took two opposites. One who was out in prelims by 25-30 marks, absolutely desperate situation, ऐसा लगता है कुछ नहीं आता. And the other one, let's for the sake of explanation just think of one exam. It's just one exam. Fine. एक बंदा बहुत जल्दी बाहर हो जाता है and दूसरा वाला बहुत देर तक रहता है and थोड़े से मार्जिन से बाहर निकलता है. अब इन दोनों का अप्रोच अलग होगा. नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड फॉल इनटू अ ब्रैकेट जो कि इन दोनों के बीच में आएगा. किसी का मेंस 5 नंबर से रहा होगा, किसी का प्रीलिम्स रहा होगा. एक्सट्रीम केसेस में प्रीलिम्स बहुत ख़राब हुआ होगा. बहुत ही अनफॉर्चुनेट केसेस में फाइनल मेरिट में एक आध नंबर या प्रोबेबली डेसिमल्स में पीछे रह गया होगा. फाइन. सो ऑल ऑफ यू वुड फॉल समवेयर इन बिटवीन. बट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ अबाउट वेदर यू थिंक यू कुड हैव मेड इट ऑन अ बेटर डे. फाइन. ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ में. ओ इट वॉज जस्ट नॉट माई डे, आई न्यू एवरीथिंग, आई मेस्ड अप दैट पजल, आई लॉस्ट दीज 10 marks एंड दैट कुड हैव मेड द डिफरेंस. यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दैट सो ऑफन. फाइन. दूसरा हो सकता है कोई चांस ही नहीं रहा, पेपर का कुछ हवा ही नहीं लगी, कुछ आता ही नहीं था, कुछ कर ही नहीं पाया. इट मीन्स दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. मोस्ट गुड स्टूडेंट्स, सिंसियर स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दैट वॉज नॉट देयर डे. दे कुड नॉट होल्ड देयर नर्व. नर्वस हो गए, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, अटक गए. यू नो एट टाइम्स द ओकेजन गेट्स द बेटर ऑफ यू, जस्ट फ्रोज हो जाता है. एवरीबडी एक्सपीरियंस इट एट सम पॉइंट. सो इफ इट्स लाइक दैट, देयर इज एवरी रीजन इन द वर्ल्ड फॉर यू टू ट्राई अगैन. बट इफ इट्स द अदर वे, फाइन, इट्स द अदर थिंग, आपको आता ही नहीं था. फाइन. यू आर सिटिंग देयर, यू किलिंग टाइम, बट यू रियलाइज कि यू आर नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड. Then you have to think about it. Now I'm not saying that those of you who are not adequately prepared last year cannot make it this year. You can, obviously, but unless you will try and work on point number 1, your resources and how you make good use of them, you planning to change that, it's not going to work. Because if you keep doing the same things, the results are not going to change on their own. If you have to change the results, you have to change the process as well, right? If you, on the other hand, belong to that group that missed out marginally, or you might say, sir, I've been missing out marginally for 2-3 years. Yes, it happens. It happens even with good people. Probably this would be your year. So my advice, you have to decide eventually. I'm just giving you a framework, a flow chart. Fine. My advice to people who missed out marginally or who think that they were a part of the race, probably missed out by even 5 marks in the final merit, but yes, a good interview could have done it for them. An interview, they just got 25 out of 50. It happens on a bad day in interview. You were very much in contention. ठीक है, खराब था, होना था, हो गया, बट ऐसा नहीं है कि आपके लिए इतनी खराब सिचुएशन है कि इस बार आप सोचो नहीं. सोचना किन को है? जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, या जिन्होंने रिसोर्सेज होने के बाद उनको ठीक से यूज़ नहीं करा, या फिर जिनके नंबर इतने कम आए हैं कि उनको लगता है कोई चांस ही नहीं है. फाइन. सब कुछ था, पढ़ा भी, फिर भी नंबर बहुत कम है. दे प्रॉबेबली नीड टू थिंक अबाउट इट. यू गेटिंग द पॉइंट. एट टाइम्स यू विल थिंक दैट आई वर्कड वेरी हार्ड, फिर भी नहीं हुआ, तो ये तो खराब सिचुएशन है. प्रॉबेबली आप खराब तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे. आई हैव सीन स्टूडेंट्स हु विल कम टू मी एंड से, सर गाइड कर दो. जस्ट दैट. फाइन. व्हाट डू यू से टू दिस? गाइड कर दो. तो मतलब इट्स लाइक सच अ यूनिवर्स. क्या क्या चीज़ें बताऊँ? मैंने कहा क्या किया अब तक?
कहना सर मेरे दोस्त ने बताया था बस ST लगाओ, और मैंने ST लगाए बहुत सारे। मैंने कहा पढ़ा कहीं से नहीं उसके पहले? नहीं सर। तो होता क्या है उसमें, ख़राब मार्क्स आते हैं। उसके बाद क्या करते हो? कुछ नहीं सर, आई टेक द अदर वन, लिटरली लाइक दैट। कैसे इंप्रूव होगा यार? यू नॉट एनालाइजिंग द टेस्ट, यू आर नॉट वर्किंग इन योर बेसिक्स, यू आर नॉट लर्निंग द लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग, नॉट सॉल्विंग पजल्स। द ओनली थिंग दैट यू डूइंग इज टेकिंग टेस्ट्स दैट वर्क्स आफ्टर यू हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल। उसको किसी ने गलत गाइड कर दिया और वो इस तरीके से पढ़ रहा है। सो if there is somebody who is at this point, you'll have to figure that out yourself. Probably the time is to work on the resources available on through which you are preparing. तो ऐसा भी हो सकता है आपके रिसोर्सेज ठीक ना हो, आपको लगता है आप मेहनत कर रहे हैं। एक ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें सब कुछ ठीक था, रिसोर्सेज भी ठीक थे, मेहनत भी करी आपने, स्टिल मिस्ड आउट बाय अ लार्ज मार्जिन। नाउ फॉर दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, फॉर मी इनफैक्ट जितना भी मैंने बात की, this is the only group that can seriously contemplate whether it's time for me to quit. I had the best resources, fine. I had good teachers, good test series, everything was good, fine. I did my best. I could not have done more, fine. I still lost out by a large margin. आप समझ रहे हैं? मेरे पास बढ़िया टीचर्स थे, मैंने खूब मेहनत करी, अच्छे से करा, इससे अच्छा नहीं कर सकता था, और फिर भी बहुत नंबरों से रह गया। इसका मतलब है प्रॉब्लम है। इसमें भी एक सवाल और पूछ लेना अपने आप से बिफोर यू डिसाइड कि मेरे को छोड़ना है, बिफोर यू डिसाइड टू क्विट। कुड आई हैव डन बेटर? फाइन, एट टाइम्स यूल से सर मैंने बहुत मेहनत की। मैं आपसे पूछूंगा और कर सकते थे क्या? हाँ सर 5-6 घंटे पढ़ता था। यार आप खाली हो, यू नॉट वर्किंग एनी वेयर, वाई नॉट 10 hours? लुक, एवरीबडी इज डिफरेंट, सो माई एप्टीट्यूड माइट बी सच दैट आई कैन डू इट इन probably by working 5 hours a day. Yours might be such that you'll probably need 8 hours. Somebody else might be able to do it in just 2 hours a day. So it's different. If you could have done 10 hours a day, why did you stop at 5 hours a day? Was this not important for you? Now you're acting as if your life depends on it, and then though you could have done it, you did not do it. What does that mean? ये तो अच्छा नहीं है ना? तो probably you need to try again. सिर्फ एक ही कैटेगरी है जिसने सब कुछ किया, सब कुछ है उसके पास, सब सारे रिसोर्सेज हैं, पूरी मेहनत करी, और आसपास भी नहीं है सक्सेस के, 2-3 साल हो गए। दैट इज़ द ओनली ग्रुप टू विच आई वुड से प्रॉबेबली यू कैन थिंक अबाउट इट। बट एक और एंगल है इसमें, पॉइंट नंबर 3 जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी सुनिए। वॉट वुड यू डू आफ्टर दिस? फाइन, सो इफ़ आई बिलोंग टू दैट ग्रुप जो अब तक के फ्रेमवर्क पे बोल सकता है कि आई एम दैट कैंडिडेट जिसको ये छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन, what is there for you to fall back on? Fine, so you'll say my dad has a jewelry store or a garment business or in some other kind of business. We are doing reasonably well. I wanted to get into a government job or a private or a public sector undertaking job, but it's okay. I have something to fall back on. I'll still have a decent life. I can earn my living. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है यार। बट ऑन द अदर हैंड देर आर सो मेनी पीपल लाइक my dad is a government servant. He'll retire in a couple of years. And I really don't know what will happen to the house once he retires. मुझे नहीं पता, मुझे करना ही है कुछ, I need to find something good. अब ऐसे केस में if you leave it like that, because आपको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है या नहीं होगा, क्या करोगे यार? अभी मुश्किल लग रहा है, जब छोड़ दोगे तो ये चांस भी खत्म हो जाएगा। Would it not get tougher? Think about it. नींद नहीं आएगी सोच के कि कहाँ से आएंगे यार, पैसे तो चाहिए ही होते हैं लाइफ चलाने के लिए, बेसिक तो चाहिए ही होते हैं। Where would you get them from? So do you have a backup plan? So for people who believe that they have some kind of a backup, some business, some private job, it can be a private job as well, fine. So you might say that I have that IT job waiting for me. It was just a matter of choosing between the two, a government/PSU job versus a private job. I till this point was not decided. Now when I've realized that I'm not good enough or I probably cannot work hard enough, I'll go to that private sector job. That's okay with me. जाओ ज्वाइन कर लो। बट अगर आपके पास जॉब भी नहीं है, अगर आपको कुछ और फ्यूचर करियर भी और नहीं दिखाई देता है, आपके डैड का बिजनेस भी नहीं है, आपका इतना सारा पैसा भी नहीं है दैट यू कैन फॉल बैक ऑन इट, से कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आई कैन जस्ट हैव अ गुड लाइफ फॉर द नेक्स्ट 50-70 ईयर्स, आई हैव इनफ मनी, माई डैड हैज़ गिफ्ट मी इनफ, ठीक है, वो भी ठीक है। बट अगर ये कुछ भी नहीं है, फाइन, आप किसी अंबानी अदानी को दूर से भी नहीं जानते, तो चॉइस क्या है? सो आई probably tell you the worst possible situation in this. I tried hard, fine. I had the resources. I somehow managed them, fine. किसी तरीके से मैनेज किया, सब कुछ किया. I still lost out. लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी एक बात सच है कि मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं on which I can fall back on, जिसको मैं बोलूँ कि I'll be able to manage. मेरे को नौकरी चाहिए ही चाहिए. मेरे पास कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं अच्छी. I do not have a private job as well. There are people who have a private job का option. वो भी नहीं है आपके पास में. क्या करोगे बताओ? फिर तो जीने मरने का क्वेश्चन हो गया ना ये, इट्स क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर यू।
यू डू नॉट हैव एनीथिंग, क्या करोगे? रिक्शा तो नहीं चलाओगे ना? तो यार अगर आपने करा है थोड़ा सा और ट्राई कर लो, हो सकता है ये साल आपका होने वाला, इज़न्ट इट? नहीं हो सकता क्या? देखो, आई एम नॉट सेइंग कि when we try and motivate you, we keep saying anybody who tries hard would be successful. That's true, that's true, you understand that success doesn't just mean bank exams, it can be success in some other form as well. You can might be taking some other exam tomorrow, अगर कुछ और है plan में उसमें हो जाओगे. So unless you give up, you will be successful. The moment you start thinking on these lines कि मेरे से होगा ही नहीं, I'm not good enough, इसके लिए मैं छोड़ देता हूँ, जब आप अपने से छोड़ने की बात पूछते हो, ask yourself the real reason. Are you afraid of the competition? इससे डर लग रहा है क्या? इतनी आबादी है, इतने लोग बैठते हैं, मेरा कहाँ होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा है. अगर ये रीज़न है तो ये गलत रीज़न है. गलत क्यों है? क्योंकि आबादी हर चीज़ में रहेगी. सो इफ़ यू से गेट इनटू अ बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आप कुछ भी बिजनेस करो, आप ऑटो चलाना शुरू कर दो, आप छोले बेचना शुरू कर दो, चने बेचना स्टार्ट कर दो, पॉपकॉर्न बेचना स्टार्ट कर दो, मेट्रो स्टेशन के बाद खड़े होगे, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है. सच बता रहा हूँ, हर चीज़ में कॉम्पिटिशन है. नथिंग कम्स ईजी. यू आर वाइंग फॉर द फेवर्स ऑफ अ गर्ल और अ बॉय हुम यू लाइक, उसमें भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है. यू लुकिंग फॉर अ ब्राइड और अ ग्रूम, उसमें भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है. नथिंग वर्थ पोजेसिंग इन लाइफ कम्स ईजी. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो भी चीज़ लाइफ में अच्छी है, जिसके लिए जो आपको लगता है मेरे पास ये होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए कॉम्पिटिशन है. दैट डजंट कम ईजी. कुछ भी आसानी से नहीं मिलता जो लाइफ में बढ़िया है. तो किस किस चीज़ से भागोगे? फाइन. तो इफ़ द रीज़न इज जस्ट दैट आई डोंट लाइक दिस कॉम्पिटिशन, या रेस मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, इसके लिए छोड़ दूंगा, तो नहीं, बहुत मुश्किल होने वाला है आगे. देखो, अगर आपके इतना सारा पैसा है कि फ़र्क ही नहीं पड़ता तो और बात है. बट अगर आपको लगता है कि कुछ और जगह आसान होने वाला है, आसान नहीं होने वाला है. आई कैन टेल यू दैट. बिल्कुल ही आसान नहीं होने वाला है. हर चीज़ में कॉम्पिटिशन होने वाला है. उसकी आदत डाल लो यार. फेलियर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो. जिस समय आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि आप ऐसे कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हो कि आप गए वहाँ देखा और आपने बस सबको मार दिया और जीत गए. आप मान लोगे कि हारना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, हारेंगे तभी जीतेंगे ना, तो ठीक हो जाएगा सब कुछ. प्रॉब्लम नहीं होती ना. एट टाइम्स आई हैव सीन पीपल, एक साल नहीं हुआ, मेहनत करी, एंड दे गेट सो डिस्पॉन्डेंट, सो दुखी कि सर कैसे होगा, क्या होगा. अरे यार, लोग 6-6 साल से लगे हुए हैं. आई वाज टॉकिंग टू अ गर्ल सम टाइम बैक अबाउट द सेम इंटरैक्शन सीरीज. शी डिड इट आफ्टर 7 years. आई विल अपलोड द वीडियो शॉर्टली. फाइन. इतने दिन के बाद लोग करते हैं, बट व्हाट वाज कॉमन इन देम? दे केप्ट गोइंग विद द बिलीफ दैट दे आर स्टिल डूइंग द राइट वर्क. बस उनका टाइम नहीं आया है. आ जाएगा यार, वो भी सूनर और लेटर आ ही जाएगा ना, अगर लगे रहेंगे तो. बट यार, छोड़ नहीं सकते ना इस तरीके से. देखो, वॉट आई हैव सेड, द जिस्ट ऑफ इट इज कि सिर्फ इस वजह से मत छोड़ दो या छोड़ के बैठ जाओ बिकॉज आपसे हो नहीं रहा है. आपको लगता है मुश्किल है, बिकॉज आपको मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको लगता है कंपटीशन आपको किल कर रहा है. क्योंकि सोल्यूशन नहीं है ना इसके अंदर. जब भी हम किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, वी लुक एट ऑल द थिंग्स ना, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास एंड इसके बाद क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं. सो इफ़ यू एन ऑल्टरनेटिव दैट सीम्स वर्केबल, दैट सीम्स डूएबल, दैट यू लाइक डूइंग, एंड कर लो, बिल्कुल कर लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ नथिंग एंड यू वांट दिस desperately, you want this really badly, it's important for you, it's your life, then you have to keep working for it. Martin Luther King ने कहा था, if you know him, when if you cannot fly, run. अगर आप उड़ नहीं सकते तो भागो. If you cannot run, then walk. अगर आप भाग भी नहीं सकते तो चलो. If you cannot walk, then crawl, but keep moving forward. अगर आप चल भी नहीं सकते तो रेंगो, बट आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. यही सक्सेस है. जब आप आगे बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, कहीं तो पहुंचोगे ना. क्विट करने का मतलब मेरे लिए रुक जाना है. दैट यू आर स्टॉपिंग देयर. यू आर सेइंग आई एम नॉट मूविंग नाउ. अगर नहीं मूव करोगे तो यार कोई कल अंबानी आके आपको गोद तो ले नहीं लेगा. इजंट इट? थिंक अबाउट इट. द ओनली पीपल विल प्रॉब्ली डू anything for you in life would be your parents, your probably immediate family, and at the most some of your friends. That's it. Nobody else. I'm telling you, कोई और कुछ नहीं करने वाला है. तो बताओ, इस सिचुएशन से कौन डील करेगा? आप ही करने वाले हो ना. इज देयर एनी अदर ऑप्शन? कुछ भी और है क्या? चलते तो रहना ही पड़ेगा ना. तो प्रॉबेबली आई एम नॉट दैट ग्रेट. आई सॉ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज अ फ्लायर, वही वाले कोर्ट में, जो जल्दी से कर गया. ठीक है यार, प्रॉबेबली आई कैन नॉट फ्लाई, आई कैन नॉट रन, आई कैन नॉट वॉक, आई एम क्रॉलिंग. हो सकता है मुझे 7-8 साल लग जाए, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ना. मुझे एक चीज़ पता है, जो मेरे जैसे कम एबिलिटी वाले लोग होंगे ना, जो क्रॉलर्स होंगे, रेंगने वाले जो होंगे, बहुत हिल गिल के जाने वाले, उनमें से बहुत सारे छोड़ देंगे क्योंकि उनमें वो पेशेंस ही नहीं होगा. उनको लगेगा हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो बाहर निकलते जाएंगे और मेरा काम आसान होते चले जाएगा. हाउ एल्स वुड यू एक्सप्लेन पीपल मेकिंग आफ्टर 6, 7, 8 years? मतलब मैं खुद से सोचता हूँ अपने बारे में, मेरे नहीं है इतना पेशेंस.
बट लोगों ने करा है यार, कितने सारे लोगों ने किया है, करते हैं। सो आपके पास ये मानने का क्या रीज़न है कि नहीं होगा, क्या नहीं कर पाओगे अब से, या फिर अब बस छोड़ देना चाहिए? प्लान नहीं है तो छोड़ना ऑप्शन ही नहीं है यार, कैसे कर सकते हो बताओ? अपने आप से वापस से पूछो, एम आई नॉट गुड इनफ टू मेक इट? मैं नहीं कर सकता क्या इसको? अगर अंदर से ये आवाज़ आती है ना, एकदम अंदर से, बिल्कुल अंदर से, कि नहीं होगा यार तुझसे, तुझसे नहीं हो सकता, नहीं होगा, तू रहने दे, तो रहने दो। एक बार लेकिन ऑनेस्टली पूछना इस बात को ना, और ये क्वेश्चन करना कि ऑनेस्टली ट्राई किया था कि नहीं किया था, सारी चीज़ें, सब कुछ पूछना। और तब भी ये आता है ना, तू कुछ भी कर ले, तेरा हो ही नहीं सकता, तो छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड लुक फॉर समथिंग एल्स, इट कैन बी एनीथिंग, सम बिजनेस, सम अदर जॉब, सम प्राइवेट जॉब। लोग बहुत छोटी छोटी नौकरी से स्टार्ट करते हैं, बहुत तरक्की कर जाते हैं। आई हैव सीन ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, फाइन, कुछ और देखो। बट अगर अंदर से कहीं से भी ये लगता है कि नहीं यार, कम से कम एक बार और तो बनता है, आई थिंक आई नीड टू ट्राई एटलीस्ट वंस मोर, बिकॉज इतनी तो यहाँ कमी रह गई थी। इट कैन बी एनी फॉर्म, सम रिसोर्स, सम मेहनत की कमी, फाइन, अ बैड इन द एग्जाम, कंप्यूटर बंद हो गया, ऐसा तो कुछ ज़्यादा लोगों के साथ में, पैनल इंटरव्यू का खराब मिल गया, इट कैन बी एनीथिंग, कहीं पर भी कुछ कमी रह गई थी। तो इस बार थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, क्या पता 2021 मेरा ही साल होने वाला हो, नहीं हो सकता। चलिए आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ एक आदमी की, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, एक फ़ोटो देख के बताइए, इनको आप डेफिनेटली जानते हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू रिकग्नाइज हिम, ही इज़ द ग्रेट श्री मिल्खा सिंह जी। वी ऑल गॉट द सैड न्यूज़ ऑफ हिज डिमाइज अ फ्यू डेज बैक। Milkha ji is a very inspirational life story. So read about him. I'm sure most of you have seen that movie भाग मिल्खा भाग, मैंने भी देखी थी। It was a good movie, अच्छी मूवी है, decent मूवी है। मैं आज आपको ये पिक्चर क्यों दिखाई? उनकी वजह से, ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन द कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। दूसरा, एक इस मूवी से मेरे को एक चीज़ याद आई। यू नो दैट आई लव क्रिकेट, आई लव मूवीज़। इस मूवी में एक सीन था, अगर आपको याद हो, जिसमें there's this Pakistani coach. He had this important race coming up in a tournament the next day, and this Pakistani coach walks up to Milkha Singh and just to rattle him and said, "ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। Remember that? This can be the last race of your life." तो मिल्खा सिंह क्या कहते हैं उसको? भागूंगा भी वैसे ही, I'll run like that. कितना इम्पॉर्टेंट मैसेज है इसके अंदर। तो बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लगता होगा प्रॉबेबली कि या तो टाइम हो गया या फिर एक साल और दे सकता हूँ। आई कैन जस्ट गिव इट प्रॉबेबली 1 more year एंड इट्स टाइम इनफ। इनफैक्ट आई हैव टू थिंक अबाउट दैट 1 year एज वेल। इट्स वेरी डिफिकल्ट। घर की स्थिति ठीक नहीं है, पोजीशन इज़ नॉट गुड, फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड। आई विल प्रॉबली नीड टू टेक अप अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। इफ एट ऑल आई कंटिन्यू, इल बी अ पेन, फाइन, आई हैव टू बेयर विद इट समहाउ। ऐसी सारी पोजीशन होंगी। तो यार, अगर ऐसा करने का प्लान कर रहे हो आप, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारी मुश्किल है, तो कम से कम मिल्खा सिंह की तरह भागो, तो आखिरी रेस की तरह। फाइन, आपका बैंकिंग में आखिरी साल हो सकता है, जस्ट थिंक लाइक दैट। बैंकिंग की तैयारी या एसएससी की तैयारी, वॉट एवर तैयारी यू आर डूइंग, इट कैन बी द लास्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन। यू माइट बी फोर्स्ड टू जॉइन अ प्राइवेट जॉब दैट यू डू नॉट वॉन्ट टू डू नेक्स्ट ईयर, फाइन, दैट्स नॉट ऑफ योर लाइकिंग। हो सकता है करना पड़ जाए। तो यार, अगर ये नहीं करना है, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस, इफ़ यू आर अवर्स टू द आइडिया ऑफ जॉइनिंग अ प्राइवेट सेक्टर जॉब और जो एनी जॉब दैट यू डू नॉट लाइक डूइंग, फाइन, तो उसको चेंज करने के लिए कम से कम इस बार तैयारी तो ऐसे करो जैसे आपका आखिरी साल है। मिल्खा सिंह के आखिरी रेस में भागने की तरह आप आखिरी साल में तैयारी करो यार। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? थिंग्स वुड नॉट चेंज अनलेस यू चेंज देम। जब तक आप खुद से बदलने की कोशिश नहीं करोगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। जस्ट नॉट लीव योर सेल्फ टू चांस। सो इफ देयर इज समबडी हु बिलीव्स कि बहुत छोटे से नंबर से रह गया था मैं, थोड़े से, तो इस बार हो जाएगा। यू आर टेकिंग दैट चांस अगैन। आई एम टेलिंग यू दैट गुड। इफ यू लॉस्ट इट बाय 1 mark, यू आर गुड, बट व्हाई डू यू वांट टू जस्ट क्लियर इट? फाइन, व्हाई डू यू वांट टू जस्ट क्लियर इट? कट ऑफ हो सकता है हो जाए। Why would you not want to aim to clear it by 10 marks this time? The final merit, I'm saying. Somebody who lost by 10 marks is trying to cover up those 10 marks. You lost it by 1 mark. Why just trying to clear it by 1 mark the next time? Why not by 10 marks? You're already good enough. So there is no place for any kind of complacency. Not for the one who lost it by 20 marks. Not for the one who lost it by just 0.2 marks. No. There is absolutely zero tolerance for any kind of complacency. आप डिले नहीं पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि इंटरव्यू में आखिरी स्टेज, जनरली पीओ एग्जाम्स में इंटरव्यू वुड बी लास्ट स्टेज। मतलब इतना मार्क्स लेकर के आ जाओ मेन में, इंटरव्यू की ज़रूरत ना पड़े। फाइन, ज़रूरत ना पड़े मतलब 20-25 नंबर में या 50 में से चल जाए। एंड देयर आर पीपल लाइक दैट। ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल जिनका अच्छा था सब कुछ, इंटरव्यू खराब हो गया, बाहर हो गए।
So why would you want to take any chance? If you're good, make the most of it. If you're not good, you anyway, in any case, have to work very hard. अगर आप ये decide करते हो after analyzing about this, अभी मत decide करना, give it some time, think about what all I've told you, and you decide कि नहीं मेरे को इस बार तो कम से कम पढ़ना है. अगर आप decide करते हो कि नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, all the best, जो भी करो लाइफ में उसमें डट के ठीक से मुकाबला करना. just fight hard whatever you do. But if you decide that you are planning to continue this preparation, अगर आपको ये कंटिन्यू करनी है तो इस बार कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना इस लेवल तक कि जब मैं आपसे या फिर कोई भी और आपसे पूछे डिड यू ट्राई योर बेस्ट दिस टाइम, सो द आंसर शुड बी आई कैन नॉट चेंज माई केपेबिलिटी माई नॉट एप्टीट्यूड बट यस आई डिड ट्राई माई बेस्ट. आई कुड नॉट हैव डन एनी बेटर. इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था. मैं अपनी तरफ से जितना तेज़ भाग सकता था मैं उतना तेज़ भागा, वो आखिरी रेस की तरह. बस इतना कर दो यार, इतना कर दो. थिंक अबाउट ऑल व्हाट आई हैव सेड एंड just if if at all you plan to prepare for this year, I'm sure most of you, majority of you are planning to already, तो बस ऐसे ही भागना जैसे आखिरी रेस है, जैसे 2022 आना ही नहीं है, जैसे ये सब कुछ यहीं पर ही खत्म हो जाना है. सारे एग्जाम होंगे, SBI क्लर्क, SBI PO, कुछ भी नहीं रुकने वाला है. डेट्स नहीं पता, उसके बारे में क्यास लगाना छोड़ दो. स्टॉप एंटिसिपेटिंग द डेट्स एंड ऑल, जस्ट कीप योर प्रिपरेशन लेवल्स अप टू द मार्क एंड बी प्रिपेयर्ड. दे कैन थ्रो सरप्राइज दैट यू डोंट नो, पता नहीं आपको कुछ भी. And just keep working. Many people made this mistake last time. You do not have to do it. Fine. Work as if the exams are starting from the first week of July. Fine. Just like that. Just like that. Nothing is to be left to chance. कुछ भी चीज़ मैं chance के ऊपर, luck के ऊपर नहीं छोड़ूंगा. I have to take control of things. इस तरीके से तैयारी करूँगा. लग जाओ अभी से, आज ही से. 23 जून, आज से नई शुरुआत होने वाली है. जो भी हो गया वो हो गया, बट आज से ऐसे ही दौड़ूंगा जैसे मेरी ये आखिरी रेस है. तो दौड़ो फिर बढ़िया से. ऑल द बेस्ट.